عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس سمجھوتا ایکسپریس بند کرنے کی منظوری دے دی۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے فیصلوں کی بھی توثیق، کابینہ اجلاس میں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کا جائزہ۔ وزیراعظم عمران خان کی قومی نوعیت کے معاملات کو ترجیح دینے کی ہدایت، فلاح و بہبود کے نئے منصوبوں کے لیے تجاویز طلب۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی سفارتی مشن پر بیجنگ آمد، چینی ہم منصب سے ملاقات، تہنیتی جملوں کا تبادلہ۔ وزیر خارجہ چین کو بھارتی اقدام پر پاکستان کی تشویش سے آگاہ کریں گے۔ مظلوموں کی سب سے بڑی تصویر مقبوضہ کشمیر، کڑا فوجی پہرا، پابندیاں، رکاوٹیں اور کرفیو مقبوضہ وادی کو قید خانے سے بھی بدتر بنا دیا۔ کشمیری اپنی ہی سرزمین میں بے یار و مددگار، کھانے پینے کی اشیاء ختم، میڈیا بلیک آؤٹ، اخباروں کی اشاعت پر پابندی، 550 سے زائد کشمیری گرفتار۔ بھارت کی کسی بھی مہم جوئی کا سخت جواب دیں گے، جو 27 فروری سے زیادہ سخت ہوگا۔ ترجمان پاک فوج کا بھارت کو دو ٹوک پیغام، ٹویٹ میں لکھا، بھارتی فوجی کشمیریوں کی جدوجہد کو دبانے میں ناکام رہے، بھارت کی حالیہ کوشش بھی ناکام ہوگی۔ عالمی مبصر گروپ آزاد کشمیر میں کہیں بھی جا سکتا ہے، کیا بھارت کی زیر تسلط کشمیر میں ایسا ممکن ہے؟ اسلام آباد میں وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر کی زیر صدارت آل پارٹیز کانفرنس، کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کی مذمت، بھارت کے ساتھ تمام معاہدے ختم کرنے اور OIC اجلاس بلانے کا مطالبہ۔ عباسی کی گرفتاری، خواجہ سعد رفیق کی گرفتاری، نیب اور PTI آپس میں ان کا گٹھ جوڑ ہے، کوئی موقع نہیں ہے اپنے ذاتی ٹکڑے یہاں پہ پیش کرنے کا۔ کیا احتساب صرف ہمارے لیے ہے؟ اور مودی کس کے گھر آیا تھا اور مودی نے کس کی شادی اٹینڈ کی؟ قومی اسمبلی کا ایوان یا آپسی جنگ کا میدان، حکومت اور اپوزیشن کے ارکان مسئلہ کشمیر بھول گئے، ایک دوسرے کے خلاف بحث کھول دیا، ایوان لفظی گولہ باری سے گونج اٹھا، تقاریر کے دوران احتجاج اور نعرے بازی، کشیدہ ملکی صورتحال میں اتحاد کے بجائے فساد کا مظاہرہ۔ چودھری شوگر ملز کیس میں گرفتار مریم نواز اور یوسف عباس کا 12 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور، عدالت کا ملزمان کو 21 اگست کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم۔ عمران نیازی سن لیں، گرفتاریوں سے دبا نہیں سکتے، یہ گردن کٹ سکتی ہے لیکن جھک نہیں سکتی۔ مریم نواز اور بھتیجے یوسف عباس کی گرفتاری پر شہباز شریف کا رد عمل، کہا گرفتاریوں سے ظاہر ہو گیا کہ نیب اور PTI کا گٹھ جوڑ ہے۔ منشیات برآمدگی کیس میں لیگی رہنما رانا ثناء اللہ کے جوڈیشل ریمانڈ میں 24 اگست تک توسیع، عدالت کا آئندہ سماعت پر CCTV فوٹیج پیش کرنے کا حکم۔ جوڈیشل کمپلیکس سے رانا ثناء اللہ کے داماد بھی گرفتار، رانا شہریار قتل کے مقدمے میں مطلوب تھے۔ ترجمان وزیر اعلیٰ شہباز گل کی وضاحت، بتایا آصف بٹ کے قتل کا مقدمہ تھانہ سمناباد میں درج ہے۔ کراچی سرکولر ریلوے کی بحالی کا مشن، سندھ حکومت نے ہاتھ اٹھا لیے، سپریم کورٹ رجسٹری میں کیس کی سماعت، وزیر اعلیٰ سندھ نے رپورٹ میں منصوبے کی بحالی کی مخالفت کر دی، کہا اراضی پر کہیں گرین لائن اور کہیں پل بن چکے ہیں، پرانی سرکولر ریلوے بحال کرنا قابل عمل نہیں، فیصلے پر نظر ثانی کی جائے۔ کراچی میں بارش کی جھلکیاں، مختلف علاقوں میں بوندا باندی، گہرے بادل اور حبس، طوفانی بارشوں کا سگنل، کل صبح یا دوپہر سے موسلادھار بارشوں کی پیش گوئی، موجودہ سسٹم گزشتہ بارش کے سسٹم سے زیادہ طاقتور ہے، محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا۔ عید قربہ میں صرف 3 روز باقی، وقت کم، مقابلہ سخت ہو گیا، خریداروں کو کم خرچ میں جانور کی تلاش، بیوپاریوں کو تگڑی جیب والے خریداروں کا انتظار، ملک بھر کی منڈیوں میں بھاؤ تاؤ عروج پر، اسے سجا دیا گیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے قومی ٹیم کے کوچنگ اسٹاف کی تقرری کے لیے اشتہار جاری کر دیا، ہیڈ کوچ، بیٹنگ اور بولنگ کوچ کے لیے درخواستیں طلب، ٹرینر کی جگہ اسٹرینتھ اینڈ کنڈیشن کوچ کا عہدہ متعارف۔ آپ کو
बताएं कि कश्मीर में भारतीय जारियत और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर तहरीक इंसाफ की रैली इस्लामाबाद के डी चौक पर जारी है। इस हवाले से मजीद जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे रेहान शेख से। रेहान शेख, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से कश्मीर में जो है भारत की जानिब से LOC की खिलाफ वर्जी, क्लस्टर बमों का इस्तेमाल और आर्टिकल 370 के ज़रिए कश्मीर की आईनी हैसियत तब्दील किए जाने पर जो है मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से एहतजाज जारी है। इसी मुनासबत से डी चौक पर हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी एक इज्तिमा का एहतमाम किया गया था, जो अब से कुछ देर कबल यहाँ पर अभी ख़त्म हुआ है। अगर कैमरा मैन मेरे आपको दिखा सकें, ये सामने स्टेज और साउंड सिस्टम अभी तक यहाँ पर मौजूद हैं, जिसमें चीफ ऑर्गेनाइज़र पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सैफुल्लाह खान न्याजी, इसके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल आमिर कियानी और इसके साथ साथ आज़ाद कश्मीर के जो सदर हैं बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी, MPA सिद्दीकी साहब जो हैं वो, और जो हैं शुएब सिद्दीकी और एजाज चौधरी समेत दीगर जो लोकल क़यादत है वो यहाँ पर मौजूद थी। बुनियादी तौर पर आज के इज्तिमा का मतलब कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती करना था। मीडिया टॉक में भी बैरिस्टर सुल्तान चौधरी ने जो खिताब किया वो यही कहना था कि वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत जो है कश्मीर इंशाअल्लाह ताला ज़रूर आज़ाद होगा। इसी तरह जो चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं सैफुल्लाह खान न्याजी, उन्होंने एक तो भारत के इस इक़दाम को जो बुरा भला कहा और उसकी सख्त मज़म्मत की, इसके साथ साथ उन्होंने जो ख़ास बात यहाँ पर रखी वो उन्होंने ये कहा कि अब जहाद काफ़ी हद तक फ़र्ज हो चुका है पाकिस्तान पर, लिहाजा जो कश्मीर की असम्बली है वो अपनी जो कश्मीर की जो हुकूमत है अपनी असम्बली से जहाद के हवाले से करारदाद जो है वो पास कराए और जो पाकिस्तान इसका पहरा देगा। एजाज चौधरी और दीगर लोग जो यहाँ पर थे उन सब ने जो है भारत के इस इक़दाम को जो है उसकी सख्त कंडेम किया और मजम्मत की और कश्मीरियों के साथ मुकम्मल इज़हार यकजहती की। 2:30 बजे का टाइम था यहाँ डी चौक पर रैली का, लेकिन इस्लामाबाद में बहुत तेज़ बारिश थी, जिसके बायस ये प्रोग्राम तकरीबन 2.5 घंटे लेट होकर 5 बजे के करीब शुरू हुआ था। 1.5 से 2 घंटा ये प्रोग्राम चला और कुछ देर कबल यहाँ पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो इज्तिमा था वो ख़त्म हो चुका है और जितने भी यहाँ पर वर्कर्स आए थे, जिनमें ख़वातीन भी थे, बच्चे बूढ़े सब लोग शामिल थे, वो आहिस्ता आहिस्ता अब यहाँ से जाना शुरू हो गए। ठीक है, लोग अब इस रैली से जाना शुरू हो गए। अच्छा ये बताइएगा रेहान, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि सॉलिडेरिटी शो की थी और काफ़ी तादाद में इस रैली में यहाँ लोग भी मौजूद थे, लोकल क़यादत तो यहाँ पर मौजूद थी, मरकज़ी क़यादत में से कोई यहाँ पर आया था? देखिए, आमिर कियानी जो MNA भी हैं वो यहाँ पर मौजूद थे, चूँकि वो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं। इसके साथ साथ लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले 2 रहनुमा, जिसमें एक MPA शुएब सिद्दीकी हैं, एजाज चौधरी हैं, वो यहाँ पर आए थे और आज़ाद कश्मीर के जो सदर हैं बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी और उसके साथ साथ इस्लामाबाद की जो लोकल क़यादत है जिसमें सदर हैं और सेक्रेटरी जनरल लियास मेहरबान हैं और दीगर जो रहनुमा हैं इस्लामाबाद की और रावलपिंडी की जो क़यादत है वो यहाँ पर मौजूद थी। अगर आप बात कर रहे हैं कि मरकज़ी क़यादत की, तो यहाँ पर कोई वज़रा, एडवाइज़र या इस किस्म का जो एक हुकूमती नुमाइंदा वो तो नहीं था, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी क़यादत, उनके सेक्रेटरी जनरल और वो इस्लामाबाद की जो लोकल क़यादत वो यहाँ पर ज़रूर मौजूद थी और तहरीक इंसाफ का यही कहना था कि वो डी चौक के अलावा पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी इसी तरह कश्मीर में भारतीय जारियत और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर तहरीक इंसाफ की रैली इस्लामाबाद के डी चौक पर इस वक्त जारी है। अपडेट करते थे रेहान शेख, आपका शुक्रिया। अभी आपको अहम खबर दें कि ओगरा ने घरेलू सार्फिन के अलावा दीगर तमाम कैटेगरीज के लिए गैस के माहाना कम अज कम बिल में इजाफा कर दिया। ओगरा की जानिब से इजाफे का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं आज उसके नुमाइंदे अशफाक मुगल से। जी अशफाक, अपडेट कीजिए, किन कैटेगरीज के बिलों में इजाफा किया गया है? जी बिल्कुल, ओगरा की जानिब से इस इजाफे का जो है बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक स्पेशल कमर्शियल का कम से कम गैस का माहाना बिल जो है 5,880 रुपये से बढ़ाकर 6,415 रुपये कर दिया गया है और इस फैक्ट्रीज का कम से कम माहाना बिल जो 5,880 रुपये से बढ़ाकर 6,415 रुपये कर दिया गया है। जनरल इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए कम से कम माहाना बिल जो है वो 26,301 रुपये से बढ़ाकर 36,449 रुपये किया गया है। 5 जो जीरो रेटेड सेक्टर्स हैं, बरामदी सेक्टर्स हैं, उनका गैस का कम से कम माहाना बिल जो है वो 20,232 रुपये से बढ़ाकर जो है 28,060 रुपये किया गया है। इसके अलावा CNG सेक्टर्स के लिए गैस का माहाना बिल जो है वो 33,045 रुपये से बढ़ाकर जो है 45,803
रुपए किया गया है। सीमेंट फैक्ट्रियों के लिए गैस का माहाना कम से कम बिल जो है 32,870 रुपए से बढ़ाकर 47,588 रुपए किया गया जी। है। पावर स्टेशन के लिए गैस का जो कम से कम माहाना बिल 21,209 रुपए से बढ़ाकर 29,416 रुपए किया गया है। इसके अलावा IPP का गैस का माहाना कम से कम बिल 21,209 रुपए से बढ़ाकर अपडेट करें, आपका शुक्रिया। कराची के इलाके न्यू कराची शफीक मोड़ से गुजरने वाले गुजर नाले की सफाई जारी है। क्लीन कराची मुहिम में FWO के साथ सिंध रेंजर्स ने भी जिम्मेदारियां संभाली। तफसीलात शकील नकवी बताएंगे। क्लीन कराची मुहिम के 5वें रोज शफीक मोड़ पर नाले की सफाई शुरू। हैवी मशीनरी के जरिए नाले से कचरा निकाला जा रहा है। वफाकी हुकूमत की जानिब से मुहिम में FWO नाले की सफाई और सिंध रेंजर्स सिक्योरिटी पर मामूर है। शहरियों ने नालों की सफाई को खुशाइन करार दिया है। हमने अपनी लाइफ में आज तक इस तरह की सफाई नहीं देखी। तकरीबन 20 साल पुराना ये कचरा है। हम तो बेहद मशहूर हैं सब लोगों का जो ये इस नाले की सफाई में सारे जो है ना ये अमला जो है ना सारे काम कर रहे हैं। इंसाफ के वर्कर्स वॉलंटियरली इस पे काम कर रहे हैं। सुबह से हम मुख्तलिफ जगहों पे जा रहे हैं, काम को खुद देख रहे हैं, बल्कि उसके साथ सफाई में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। शहरी कहते हैं नालों की कितनी हद तक सफाई की जाएगी इसका नतीजा हालिया बारिश के बाद ही सामने आ सकेगा। शकील नकवी, आज न्यूज़ कराची। महकमे मौसमियात ने कल से कराची में तेज बारिशों की पेशगोई की है। इंतजामिया FWO के साथ रेंजर्स सिंध भी शहर के नालों की सफाई में मसरूफ है। मजीद जानते हैं आज उसके नुमाइंदे फैजान जलील से। फैजान, अपडेट कीजिए कि बारिशों के पेश नजर शहर में नालों की सफाई की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात ने शहर कायद में आज से जो है वो बादल बरसने की पेशगोई की है। शहर के अलावा दही इलाकों में भी जो है वो तेज़ बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। साथ ही साथ शहर में अगर इंतजामिया की बात की जाए तो गुज़श्ता रोज़ तक जो है वो नाकिस इंतजामात देखे गए थे। कोई इंतज़ाम नहीं किया गया था। नदी नालों में उसी तरह कचरा जमा था जैसे पहले जमा था, और जब इससे कबल 2 हफ्ते कबल शहर कायद में 2 रोज़ तक बारिश हुई थी तो निज़ाम ज़िंदगी दरम बरम हुआ था और कई हादसा भी पेश आए थे। और साथ ही साथ जो नदी नालों में पानी भर गया था वो सड़कों पर आ गया था, लोगों के घरों तक में दाखिल हो गया था। लेकिन क्लीन कराची की जो मुहिम जारी है उसमें रेंजर्स के जवान भी जो है वो हिस्सा लेते दिखाई देते हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सफाई सुथराई के इंतजाम किए जा रहे हैं। नदी नालों की सफाई का भी काम जारी है, लेकिन अभी भी कई नाले, कई नदी और कई मुकामात ऐसे हैं जहाँ पे सीवरेज का निज़ाम ना होने के बराबर दिखाई देता है। वहाँ पर काफ़ी कचरा और काफ़ी गंदगी का ढेर अभी भी जमा है। इसी पर शहरी ये भी कहते हैं कि अगर बारिश दोबारा होती है और गुज़िश्ता दिनों से ज़्यादा, गुज़िश्ता मानसून से ज़्यादा इस बार मानसून में बादल बरसते हैं, पानी ज़्यादा जमा होता है तो शहरियों को काफ़ी जो है वो पहले से ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। गुज्जर नाले की सूरत हाल हमने देखी। गुज़िश्ता 2 रोज़ से वहाँ पर काफ़ी कचरा जमा है। अतराफ में रहने वाले, बसने वाले जो शहरी हैं उन्हें इंतहाई मुश्किलात का सामना है, बल्कि जो पहले बारिशें हुई थी उनका पानी भी अभी तक उनके घरों में जो है वो मौजूद है। निकासी आपके हवाले से इंतजामिया की जानिब से दावे तो कई किए गए, लेकिन देखा जाएगा आइंदा आने वाली बारिशों के मौसम में, बारिशों के दिनों में कि इंतजामात पे कितना जो है वो अमल किया जाता है ताकि शहरियों को मुश्किलात से निकाला जा सके। जी ठीक है, फैजान जलील अपडेट करें, आपका शुक्रिया। कराची में मानसून का दूसरा राउंड बादल बरसाने को तैयार है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये स्पेल पहले से ज्यादा ताकतवर होगा। आज रात से गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। रिपोर्ट कर रहे हैं खबर हुसैन। कराची वाले तैयारी कर लें, मानसून का दूसरा राउंड शुरू होने को है। कराची समेत सिंध में आज से 12 अगस्त तक बादल गरज चमक के साथ खूब बरसेंगे। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि बारिशों का नया निजाम पिछले सिस्टम से ज्यादा ताकतवर है। कराची में रात गए से यानी आप कह सकते हैं मिडनाइट से तेज़ बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है और ये कल भी जारी रहेगा, परसों भी जारी रहेगा और 12 तारीख की सुबह तक जारी रहेगा। उन्होंने बताया कराची में दाखिल होने वाली बारिशों का दूसरा स्पेल डीप डिप्रेशन से डिप्रेशन में चला गया है। इस वक्त सिस्टम मौजूद है डिप्रेशन की शक्ल में। हवा का शदीद कम दबाव ये सेंट्रल इंडिया के आसपास मध्य प्रदेश और सेंट्रल इंडिया के जो मलिका इलाके हैं उसमें मौजूद है।
पिछली बारिश के खौफनाक तजर्बे के बाद कराची के शहरी खौफजदा हैं। कहते हैं बद इंतजामी ने बारिश का मजा खराब कर दिया है। पिछली बारिश में भी कोई इंतजाम सही नहीं था, कुछ भी ठीक से नहीं हो रहा, पानी बहुत खड़ा हो जाता है। उससे बुरी सूरत हाल होने वाली है जिस तरह की प्रेडिक्शन सामने आ रही है कि शहर में तूफानी बारिशें होनी है। वेदर वार्निंग जारी होने के बाद कराची में इदारे हरकत में आ गए। डीजी हेल्थ सिंध ने अस्पतालों के अमले की छुट्टियां मंसूख करते हुए 24 घंटे हाजिरी यकीनी बनाने की तंबीह कर दी। खावर हुसैन, आज न्यूज, कराची। के इलेक्ट्रिक ने बारिश के पेश नज़र हिफाजती इंतजामात मुकम्मल करने का दावा कर दिया। ताहम तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने मसाइल का जिम्मेदार जमा होने वाले बारिश के पानी को करार दे दिया है। कराची में फिर शदीद बारिश की पेशगोई, के इलेक्ट्रिक का हिफाजती इक़दामात मुकम्मल करने का दावा। कराची में चंद रोज कबल होने वाली बारिश के दौरान करंट लगने से 22 अफराद जाँ बहक हो गए थे। आज न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में तर्जुमान के इलेक्ट्रिक नूर अफशा ने मसाइल की असल वजह सड़कों पर मौजूद गड्ढों और खड़े हो जाने वाले पानी को करार दिया। हमारी टीम्स को सबसे बड़ा चैलेंज था वो यही पेश आया था कि खड़ा पानी था। हमारी टीमें बिजली की तंसीबात पे ना काम कर पा रही थी और जो ट्रैफिक और सड़कों के हालात उसकी वजह से वो पहुंच भी नहीं पा रही थी जिन साइट्स को रेस्टोरेशन, जहां हमने रेस्टोरेशन करनी है। नूर अफशा ने बारिश के दौरान शहरियों को एहतियात बरतने का मशवरा भी दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी है। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल, भारतीय इक़दामात के अलावा पाकिस्तान की जवाबी हिकमत अमली पर भी गौर किया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आज न्यूज़ इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी। तारिक चौधरी, बताएगा इजलास में कौन से अहम मामला ज़ेर गौर आ रहे हैं? ये वफाकी काबीना का इजलास अब तकरीबन खत्म होने वाला है थोड़ी देर में। जो जराये से हमें इत्तला मिली है कि एक तो कौमी सलामती कमेटी के जो फैसले थे उनकी भी तस्दीक की गई है। इसके अलावा जो समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस बंद करने का फैसला हुआ था और तजारत जो है वो बंद करने का फैसला था उसकी भी तस्दीक की गई है। और इसके अलावा जो पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन था उस इजलास में जो करारदाद पास की गई मकबूजा कश्मीर के हवाले से और भारतीय रवैये के हवाले से कंडेम किया गया, उसको भी हमायत की वफाकी काबीना ने वफाकी काबीना को मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से भी आगाह किया गया। इसके अलावा आज के इजलास में एहसास प्रोग्राम जो था उसके बारे में ब्रीफिंग दी गई वफाकी काबीना को और ये बताया गया कि अब फ्यूचर में कौन कौन से। ठीक है तारिक चौधरी, बहुत शुक्रिया आपने तफसीलात से आगाह किया। और अभी आपको बताएं कि स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने पार्लिमानी सिफारतकारी तेज कर